Hello, my dear students. Okay, welcome back to your class. Okay, my dear students. So, as you know that we are going to do something new. What new? Nothing new. Is there anything new? Yes, there is one new thing. Which new thing? That we are going to start a new chapter. What new thing? We are going to start a new chapter. हम लोग आज एक new chapter start करेंगे. Okay, which is the chapter? Which is the chapter name? What is the name of the lesson and which number? Anything? Do you know? I don't know anything. So don't worry, I will tell you. See, we are going to start chapter number 3. Okay, and what is the name of the chapter? See, I'll say you. The name of the chapter is Important Service. Now, what is the name of the chapter? Important service. Now, service means what? Press service? No, service means that see, for example, in hospital they have service of ambulance, right? Hospital में ambulance की service रहती है ना. Ambulance क्या काम करती है? What work ambulance is doing? Ambulance is bringing patient to the hospital. This is the service of ambulance. Okay. Now in post office, what is the service of post office? To send the letters to the people. This is the service. This is known as service. So in this chapter we are going to see in detail what do we mean by service and how many service are there in our society. So are you ready? Yes. So without wasting much of our time, come we will start our today's new chapter. Okay, my dear students, so without wasting much of our time, come we will start our today's chapter. And my dear students, before starting the chapter, let me tell you, when I will read the lesson, you will keep your finger on the line. This will help you to know that where I am reading. Okay, जब मैं लेसन रीड करूँगी आप अपनी फिंगर लाइन पे रखोगे. ये आपको हेल्प करेगी ये देखने के लिए कि मैं कहाँ रीड कर रही हूँ. Okay, so come we will start. Chapter number 3, Important Service. We see large neighborhoods in cities and towns. Most neighborhoods have buildings or places that give us important service. In this lesson, we will study about the various important service in our neighborhood. Now, we see large neighborhoods in cities. Large neighborhoods means neighborhood का मतलब क्या होता है? Neighborhood means हमारे आसपास, हमारे अड़ोसी पड़ोसी या हमारे घर के आसपास. Okay? We see many cities and towns. हमारे घर के आसपास हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है. हमारा सिटी बहुत बड़ा हो गया, हमारा टाउन्स बहुत बड़ा हो गया. ओके, some buildings give us important service. Some buildings give us important service. Important service means कोई बिल्डिंग्स है जो हमें important सर्विस यानी कि सुविधा उपलब्ध करवाती है. बिल्डिंग्स कैसे क्या उपलब्ध करवाएगी सुविधा? So in this lesson we are going to see the important service. Okay, important service in our neighborhood. Now post office. Now first service we will see of post office. पहले हम post office की सुविधा देखेंगे कि post office हमें क्या सुविधा देती है. We receive and send letters through the post office. People buy stamps, envelopes and postcards at the post office. Now see, in older times people used to send letters. पहले के ज़माने में लोग कैसे बात करते थे? पत्रों से. पत्र यानी कि लेटर. ठीक है, सो पत्र आया बोलते हैं ना. सो in that way letter. So post office help us to send or to take letters. post office हमें help करता है पत्र भेजने में और पत्र मिलने में. मतलब कोई हमारे नाम से अगर पत्र भेजे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने हमारे नाम से पत्र भेजा है? पोस्ट ऑफिस में जाके. पोस्ट ऑफिस वाला अपने को पत्र भेजने आता है ना, साइकिल पे आता है ना, पोस्ट ऑफिस बोल के पत्र ले लो. इन सेम दैट वे द पोस्टमैन कलेक्ट्स आवर लेटर्स दैट द लेटर्स आर स्टैम्प्ड इन पोस्ट ऑफिस एंड सेंट बाय रेल और एयर टू द डेस्टिनेशंस. वी कैन ऑल्सो सेंड मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स. पोस्ट ऑफिस के जरिए दूर दूर बैठे लोगों को उनके पत्र, पार्सल और मनी मतलब पैसे,
पोस्ट ऑफिस में हम लोग पार्सल यानी कि कोई सामान, मनी यानी कि पैसे, लेटर्स मतलब पत्र, ये सब चीज़ें भेज सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस हमें क्या सुविधा दे रही है? ये सब चीज़ें भेजने की और अपने पास किसी ने अगर भेजा हमारे पास मिल जाने की ये सुविधा, ये सर्विस पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट सर्विस वी विल सी ऑफ फायर स्टेशन। फायर स्टेशन मीन्स, फायर स्टेशन का मतलब क्या होता है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी और फायरमैन। ओके, देयर इज अ फायर स्टेशन इन सम नेबरहुड्स। अ फायर स्टेशन हैज फायर इंजन्स। फायर फाइटर्स वर्क इन अ फायर स्टेशन। मतलब फायर स्टेशन हर सिटी में प्रोवाइड रहता है। अगर कहीं आग लगी तो वो लोग फायर स्टेशन मतलब फायर की बिल्डिंग में फ़ोन करके इन्फॉर्म करते। तो ये लोग फायरमैन जो रहते हैं वहाँ जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फायरमैन। तो फायरमैन क्या करते? तुरंत फायर वाली गाड़ी में बैठते और जहाँ आग लगी है वहाँ पहुँच जाते। उनका सायरन बजा देते। सायरन मतलब इंजन, घंटी, जैसे एम्बुलेंस की घंटी रहती, पुलिस वालों की, पुलिस की गाड़ी की घंटी रहती है ना, वैसे ही फायर स्टेशन वालों की फायर की गाड़ी की घंटी रहती है। अब ये घंटी क्या काम करती है? ये जब गाड़ी चलाते हैं तो ये घंटी बजा देते हैं, इससे लोगों को पता चले कि कहाँ आग लगी है और उनको रास्ता दे। किसको रास्ता दे? फायर की गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। ओके, दे गो टू द हाउसेस एंड बिल्डिंग्स वेयर देयर इज फायर। फायर फाइटर्स यूज वाटर house pipes to put out fire. They climb ladders and rescue people trapped in burning buildings. देखो, फायर वालों की गाड़ी में ये सीढ़ी रहती है। अब फायर वालों की गाड़ी में सीढ़ी क्या काम करेगी? सीढ़ी ये काम करती है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लगी हो और वो लोग सीढ़ियों से नहीं जा पाए तो वो लोग ये सीढ़ी यूज़ करते हैं वहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको निकालने में। और फिर इनके पास पाइप रहता है, जैसे पानी मारते हैं ना पाइप से, उस पाइप से वो लोग पानी मार के वहाँ की आग को बुझाते हैं। सो दिस इज द सर्विस ऑफ फायर स्टेशन। ये सर्विस फायर स्टेशन वालों की है। ओके, नाउ वी विल सी द सर्विस ऑफ बैंक। बैंक क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? अ बैंक इज अ प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी एज वैल्यूएबल सेफ। बैंक ऐसी जगह है जहाँ पर सबके पैसे सेफ रहते हैं और कोई बैंक से ले भी नहीं सकता है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल टर्न द पेज। we'll see page number 134. We can take them out when we need them. It is very useful service in our neighborhood. Now which service? Bank service. In bank what we are doing? We are going and eating snacks? No. In bank we are keeping our money safe. बैंक में हम लोग क्या करते हैं? अपनी जो मनी, अपना जो पैसे है उसको सेव कर रखते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ी तो बैंक से निकाल सकते हैं और बैंक में वापस डाल भी सकते हैं। सो दिस इज़ द सर्विस ऑफ बैंक। तो ये बैंक की सर्विस है। नाउ वी विल सी प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या सर्विस देती है? नाउ वी विल सी व्हाट प्लेग्राउंड इज डूइंग, गिविंग अस सर्विस। इन अ फील्ड वेयर वी गो टू प्ले इट मीन्स हैव स्विंग्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन। नाउ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड हमें क्या सर्विस देती है? प्लेग्राउंड हमें जगह देती है खेलने के लिए। जैसे हम बैट बॉल खेल लिए, फुटबॉल खेल लिए, कैच खेल लिए। तो प्लेग्राउंड क्या सर्विस देती है? प्लेग्राउंड हमें ये सर्विस देती है कि वो बहुत सारी जगह हमें देती है खेलने के लिए। सो दिस इज़ द सर्विस ऑफ प्लेग्राउंड। नाउ मार्केट सर्विस। नाउ हाउ मार्केट इज गिविंग सर्विस टू अस? वी विल सी। We buy things of daily use from the market. A market has different shops. Shopkeepers sell different things in their shops. Now, market. We use daily things from the market. मतलब मार्केट में से हम डेली के जो सामान, हमारे रोज़ की जो सामान है, जैसे टूथब्रश हो गया, सोप हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब हम कहाँ से लेते हैं? मार्केट से लेके। A market has different shops and shopkeepers sell different things in their shop. मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप की शॉप रहती है, जैसे किराना शॉप हो गई, कपड़ों की शॉप हो गई, खेलने की सामान की शॉप हो गई, वेजिटेबल्स की शॉप होगी, मेडिसिन की शॉप हो गई। तो मार्केट में बहुत डिफरेंट काइंड्स के शॉप रहते हैं और वो शॉप में शॉपकीपर्स किसको बोलेंगे? जो वो शॉप
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप्स की शॉप्स रहती है. द डिफरेंट शॉपकीपर्स include grocers, stationer, etc. The shops sell fruits, vegetables, breads, eggs, clothes, food grains, pulses, etc. Today we have big shopping malls. My dear students, in market we have different kinds of shops. Some have grocery shop, some have stationery shop, some have fruit shop, vegetable shop, bread, some can sell breads, एग्स, क्लोथ्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस. मतलब मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप्स की शॉप्स रहती है. कोई फ्रूट सेल कर रहा है, कोई सब्जियां सेल कर रहा है, कोई किराना सेल कर रहा है, कोई कपड़े सेल कर रहा है. सो मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप्स की शॉप्स है. बट टुडे वी हैव बिग शॉपिंग मॉल्स. बट आजकल के क्या हो गया है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए. जैसे कि बड़ी बिल्डिंग खुल गई, उसी में आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, सब्जियां भी मिल जाएंगी, फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, और अलग अलग टाइप के जो आपको चीज़ें खरीदना है वो सारे आपको शॉपिंग मॉल्स में मिल जाएंगे. सो दिस इज द सर्विस ऑफ मार्केट. नाउ वी विल सी द सर्विस ऑफ हॉस्पिटल. अब हम हॉस्पिटल की सर्विस देखेंगे. अ हॉस्पिटल इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर इल और इंजर्ड. हॉस्पिटल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस है, प्लेस है, जहाँ हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें कोई चोट लग जाती है. व्हेन वी फॉल इल और वी हैव इंजर्ड. ओके. डॉक्टर्स एंड नर्स वर्क इन हॉस्पिटल्स. द डॉक्टर डायग्नोसिस द इलनेस. अब हॉस्पिटल में कौन काम करता है? शॉपकीपर, सामान बेचने वाला या सब्जी बेचने वाला? नो, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर वर्किंग. हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस काम करते हैं. डॉक्टर्स डायग्नोसिस द इलनेस. डायग्नोसिस मीन्स डॉक्टर्स पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और पता करवाते हैं कि इसे क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की बीमारी है. ओके. द नर्सेस लुक आफ्टर द इल पीपल इन द हॉस्पिटल. और नर्सेस क्या करती है? नर्सेस जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते पेशेंट्स, उनको टाइम टू टाइम दवाई देती है, इंजेक्शंस देती है. सो दिस इज द वर्क ऑफ नर्स. ये नर्स का काम है. एन एम्बुलेंस टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इन केस ऑफ एमरजेंसी. अब हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का क्या काम है? एम्बुलेंस टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल. एम्बुलेंस का ये काम है कि जो पेशेंट है उनको फटाक से हॉस्पिटल लेके जाए एमरजेंसी के पहले. ओके. सो दिस इज द सर्विस ऑफ हॉस्पिटल एंड एम्बुलेंस. नाउ वी विल सी द सर्विस ऑफ पुलिस स्टेशन. पुलिसमैन एंड पुलिस वुमन वर्क इन द पुलिस स्टेशन. नाउ पुलिस स्टेशन में कौन काम करता है? पुलिसमैन एंड पुलिस वुमन दो काम करते हैं. पुलिस मैन भी काम करता है और पुलिस वुमन यानी कि लेडी भी काम करती है. दे प्रोटेक्ट द नेबरहुड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर. अब पुलिस क्या काम करती है? इंजेक्शन देने का? नो, पुलिस ये काम करती है कि जो बाकी के पीपल, जो सोसाइटी में जो पीपल है, जो लोग हैं, उनको जो डेंजर से बचा सके. कौन से डेंजर से? जैसे किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने मार दिया, या किसी ने किसी का सामान चुरा के भाग लिया. सो ये सब डेंजर से कौन बचाता है हमें? पुलिस मैन एंड पुलिस वुमन. दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. दे पुट रॉबर्स इन पिक पॉकेट्स इन द लॉकअप. वी कैन डायल 100 नंबर टू कॉल पुलिस. पुलिस हमें चोरों चकोच से बचाती है. कैसे बचाती है? अगर कोई चोरी करके भाग रहा हो तो हम लोग क्या करते? तुरंत पुलिस को फ़ोन करते. अब पुलिस का नंबर तो सबके पास रहता नहीं है. सो व्हाट वी विल डू? वी कैन कॉल टू 100 नंबर. 100 नंबर सबके फ़ोन में रहता है और 100 नंबर सबको पता है कि पुलिस वालों का रहता है. सो वी कैन कॉल टू 100 नंबर्स एंड वी कैन से देम टू कैच द रॉबर्स एंड कीप इन द पिक पॉकेट एंड लॉकअप. मतलब हम 100 नंबर पे डायल करके उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ चोरी हुई है, आप चोरों को पकड़ो और लॉकअप में यानी कि पुलिस स्टेशन में ले जाओ. ओके. दे हेल्प अस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. पुलिस वाले हेल्प करते हैं कि सिटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बरकरार रहे. ओके. सो दिस इज द सर्विस ऑफ पुलिस स्टेशन. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर टुडेज चैप्टर. Okay my dear students, we have completed the third chapter, important service, in today's video. So what you have learned in this chapter?
we have learned that we in our society we have different kinds of services. For example, hospital service, ambulance service, fire station service, okay, police station service. We have different kinds of service, and this help us to live happily and safely in society. Okay, so we have completed today's chapter. I will send you the PDF of notes, so you will complete your notes. Okay, and please see your handwriting should be neat and clean. Okay, so stay safe, stay healthy, stay at home, don't disturb your parents, don't trouble your parents. I'll see you in the next video next time. Till that time, bye bye.